Let us start this thing with the differentiation between insulators and conductor. I'm teaching this topic here because the derivations which we are going to derive now would be requiring the differentiation between insulators and conductor. However, there are many properties of conductors regarding electric fields which we will read in next of the topics or next of the videos. Here only the essential properties which I require now I am teaching them. First of all, insulator and conductor, like you have any kind of the material. Suppose I have a kind of sphere. Here also a kind of a sphere. It is metallic sphere, and it is non-conducting sphere. Non-conducting means it is made up of any kind of insulating material. Non-conducting sphere. What is the speciality of those things? If you provide any charge to it, suppose you have provided some charge to it and you have provided some charge to it. If any charge is provided to this non-conducting sphere, the charge resides on the same surface or the same place where you have provided. The charge resides on the same place वही रहने वाला. Charge will not move from one place to another place. So whenever we say a charged insulating sphere having uniform charge distribution, if we talk such kind of thing, it means at the time we are talking about the surfaces, a charged insulating sphere having uniform charge distribution, and it is if non-conducting, the charge is distributed throughout the sphere uniformly. It means that the charge is distributed throughout the sphere uniformly. This is the meaning of that. Means the charge is all over the surface. The charge is inside of the surface means charge is distributed volume wise also. Charge is distributed volume wise also. There is charge in volume. Means at the time, in reality we talk about volume charge density. However, if conductors are there and if you provide any charge to them, suppose I have provided some charge to the conductor, the property of the conductor is that charge cannot reside inside of a conductor. चार्ज कैन नॉट रिसाइड इनसाइड ऑफ अ कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं रह सकता है. द चार्जेस ऑलवेज मूव टू द surface. They always move to the surface. Means either you have provided here plus charge to the center of the sphere. After some time, means instantly, you cannot say after some time also, instantly the charges will be transferred to the surface. A very simple reason of this, for here I am explaining only simple reason. Later on I will be talking about the electric fields and the direction vectors at the time. Here a simple explanation I give. The simple reason is that actually like charges repel each other. And if they are repelling and they are free to move, if they are repelling and if they are free to move, they try to move away as much as possible. कि अगर चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, नॉर्मली लाइक चार्जेस ही होंगे. ऐसा हुआ प्लस और माइनस दोनों दे दिया तो वो कैंसिल आउट होकर रिजल्टेंट चार्ज देने वाला है. ठीक है. इन दिस व्हाट इज दिस? चार्जेस आर रिपेलिंग हियर. आर दे रिपेलिंग? यस. हियर आर दे रिपेलिंग? यस. बट हियर आइदर दे आर रिपेलिंग, दे आर नॉट एबल टू मूव बिकॉज insulators does not allow the flow of charges. So charges has to reside on that same space where they were kept. जहाँ उनको रखा वहीं उनको बैठे रहना है. However, in metallic conductors, no such kind of foundations are there. Charges are free to move inside of a conductor. Conductor के अंदर तो easily move हो सकता है, तभी तो वो conductor है. That's why, due to these repulsive forces, the charges always try to maximize the distance between them. They always try to maximize means maximum distance, maximize the distance between them,
दे ऑलवेज ट्राई टू मैक्सिमाइज द डिस्टेंस बिटवीन देम, मीन्स हमेशा वो चाहते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस वो एक्वायर करें. एंड हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ ओनली पॉसिबल इफ दे रिटेन ऑन द सरफेस, इफ दे रिटेन ऑन द सरफेस. सो दीज चार्जेस एक्चुअली आर नॉट फाउंड हियर and they are always found to the surface. Either you give, either you provide charge to the inner surface, automatically it will transfer to the outer surface, means charges on a conductor are always found on outer surface. There is no charge inside of the surface. This is important, only this thing you must memorize here. आपको यही चीज़ याद रखें. एक्सेस जो भी है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, अदर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं. So we will be discussing about that also. So here what is the important thing? Important ये है कि जो चार्जेस हैं फॉर एनी काइंड ऑफ द स्फेरिकल सरफेसेस, या कोई भी हुआ, मेटालिक सरफेस हुआ, मेटालिक शीट भी हो सकती है, प्लेट भी हो सकती है, कुछ भी हो जाए. जैसे एक मेटालिक प्लेट है, अगर आपने इसके अंदर भी चार्ज दिया तो वो उसके सरफेस पे ही आना है. एंड इट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस. हमेशा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, क्योंकि चार्ज हमेशा मैक्सिमम डिस्टेंस करने की कोशिश करता था. ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से उतनी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहेंगे जितनी ये दोनों करेंगे. तो नॉर्मली देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इफ कंडक्टर्स आर हैविंग अ सिमेट्रिक शेप. अगर सिमेट्रिक शेप है तो नॉर्मली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है एंड चार्जेस ट्राई टू गेन मैक्सिमम डिस्टेंस. और ऐसा कब पॉसिबल है? जब वो सरफेस पे रहे. अगर वो अंदर रहेंगे तो रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होगा तो वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे. सो आपको याद रखना है कि वेन एवर यू प्रोवाइड चार्ज टू एनी काइंड ऑफ द मेटेलिक सरफेस, चार्जेस हमेशा बाहर आने वाले, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा. देयर विल बी नो चार्ज इनसाइड ऑफ अ मेटेलिक सरफेस. अंदर कोई भी चार्ज होने वाला नहीं है. द चार्जेस विल reside only on the surface for a metallic conductor. However, for insulators it is not true. For insulators the charges can reside on the surface also, inside also. बाहर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, because the charges are not moving. तो अगर कंडक्टिंग स्फीयर है, चाहे वो सॉलिड है चाहे वो होलो है, उसमें चार्ज अंदर नहीं लेना. मतलब एक तरह से कंडक्टिंग स्फीयर्स के लिए कभी भी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टर्म ही यूज नहीं होगी. फॉर कंडक्टिंग स्फीयर्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वर्ड यूज होने वाला ही नहीं. क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि उसके वॉल्यूम में तो चार्ज रहने वाला है नहीं. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको याद रखना है, बिकॉज दिस टू थिंग्स विल हेल्प अस टू डिराइव सम डेरिवेशंस नाउ. And later on we will be reading the properties of conductors and the electric fields, and we will be discussing that thing in a complete video lecture. एक पूरा video lecture required होगा अगर हम electric fields की discussion करेंगे metallic conductors के लिए, और हम second chapter finish करने के बाद ही उसका discussion start करेंगे. So we'll be talking about some topics of that. So I think so you got this concept. Insulating material, charges resides on the surface as well as inside of them. Metallic surfaces, the charge is only on surface, no charge will be there inside. Either you provide, तुमने कहा नहीं मैं तो चार्ज दे दूं सर अंदर, दे दे भाई, देते ही वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा. सो दिस वाज द डिफरेंशिएशन, आपको इसको याद रखना है. लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन. नाउ वी आर गोइंग फॉर द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मेटालिक इनफाइनाइट शीट. मेटालिक मीन्स वी आर टेकिंग कंडक्टर इनफाइनाइट शीट. कंडक्टर infinite sheet. In the previous lecture we have taken non-conducting sheet, and difference between conducting and non-conducting you will get here. If you take any kind of sheet which is infinitely distributed, actually every metallic sheet always have two surfaces. हमेशा metallic sheet चाहे जितनी पतली ले ली जाए उसके हमेशा two surfaces होंगे. नॉन मेटलिक में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी. नॉन मेटलिक या नॉन कंडक्टिंग में वो प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि चार्जेस जहाँ दिए उसी सरफेस पे चार्जेस रहने वाले हैं. मेटलिक शीट में प्रॉब्लम है, चार्जेस अगर आपने प्रोवाइड कर दिए तो वो एक तरह से इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. चार्जेस उसके अंदर तो रह ही नहीं सकते, तो चार्जेस उसके आउटर सरफेस पे चले जाते हैं. कहाँ चले जाते हैं? आउटर सरफेस पे. सो दिस इज द मेटलिक शीट. अगर आपने चार्ज दिया है यहाँ, तो चार्जेस इसके दोनों सरफेसेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. दैट्स व्हाई आई ट्राई टू ड्रॉ इट. मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ करता हूँ ताकि ये 3D दिखे आपको. कैसे दिखे? 3D. सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ इट लाइक दिस. सो इट अपेयर्स लाइक 3D स्ट्रक्चर. वी हैव दिस टू सरफेसेस हियर. आइदर वी आर टेकिंग वेरी थिन शीट. ली हमने बहुत पतली, जितनी हमने नॉन मेटेलिक शीट ली थी उतनी ही पतली हम मेटेलिक शीट भी ले रहे हैं. बट द प्रॉब्लम विद दिस शीट विल बी देयर विल बी नॉट अ सिंगल सरफेस. एक सिंगल सरफेस नहीं है, देयर आर टू सरफेसेस. तो अगर आपने इसको चार्ज प्लस प्रोवाइड किया है, द चार्जेस प्लस इज प्रोवाइड. आई विल बी यूजिंग अ लाइट कलर. काफ़ी लाइट कलर में यूज़ करूँगा ताकि आप अगर मैं उसके ऊपर कोई ड्रॉ करूँ चीज़ तो आपको याद रहे. लाइक आई एम हैविंग द चार्जेस हियर. मैंने इसमें कुछ चार्जेस प्रोवाइड किए हैं, तो चार्ज इसके अंदर तो जाने वाला है नहीं,
ये चार्ज इस साइड सरफेस पे और पीछे की साइड सरफेस पे, ये पीछे वाला सरफेस सपोज करें आप, कैन यू सी दिस साइड एंड द बैकवर्ड साइड, ये दोनों साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। एंड इनफाइनाइट शीट है तो यहाँ तो हम मानना ही नहीं क्योंकि तो इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। इन्फिनिटी क्या हुआ, व्हेन यू हैव प्रोवाइडेड चार्ज, अगर आपने शीट को चार्ज दिया तो अंदर नहीं रहा, चार्ज कहाँ चला गया, उसके दोनों ही सरफेसेस बाहर की साइड चला गया। तो सपोज यू हैव दिस काइंड ऑफ द शीट, अगर आपके पास एक शीट हो, जैसे ये स्केल ही ले लेते हैं हम, तो सपोज ये मेटेलिक कंडक्टर शीट है, तो चार्ज इसके इस सरफेस और उस सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, बोथ साइड द चार्जेस विल डिस्ट्रीब्यूट, दिस साइड ऑल्सो एंड दिस साइड ऑल्सो। और अगर ये नॉन मेटेलिक होता, मीन्स इंसुलेटर होता, तो मैंने चार्ज यहाँ दिया तो यहीं चार्ज रहेगा, चार्ज पीछे जाने वाला नहीं है, चार्ज यहाँ दिया तो यहीं रहने वाला है। तो नॉर्मली हम जब शीट्स की बात करते हैं तो इंसुलेटिंग शीट्स जो होती हैं उनमें सिंगल लेयर्ड ही माना जाता है। इंसुलेटिंग शीट्स जो होती हैं, इंसुलेटिंग शीट्स को माना जाता है सिंगल लेयर्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ बेटा, इंसुलेटिंग शीट्स को माना जाता है सिंगल लेयर्ड। क्या माना जाता है, सिंगल लेयर्ड शीट माना जाता है उनको। वाई, हाउएवर इफ इट इज़ अ कंडक्टिंग शीट, कंडक्टिंग शीट है तो सिंगल सरफेस तो होना ही नहीं है, कंडक्टिंग शीट है, चाहे जितनी पतली ले लो आप, इनफाइनाइटली पतली लो आप, इनफाइनाइटली थिन ले लो आप, स्टिल देयर विल बी टू सरफेसेस, उसके दो सरफेस हो जाएंगे, एक सरफेस हो जाएगा उसके इस साइड और एक सरफेस उसके पीछे। और इनफाइनाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब काफ़ी लॉन्ग है, तो उस कंडीशन में हम जो एक एज इफेक्ट होता है, एज इफेक्ट, उसकी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। एज इफेक्ट होता है, कुछ गड़बड़े आती है एजेस की वजह से, तो हम उसका डिस्कशन करने वाले नहीं, उसको फ्रिंजिंग बन जाती है, तो वो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। सो वी हैव दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग मेटालिक शीट एंड इफ यू हैव प्रोवाइडेड सम चार्ज, द चार्ज गेट्स बैक साइड ऑल्सो, चार्ज पीछे की साइड भी चला जाता है। तो इन सिचुएशन अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो वी हैव टू कंसिडर टू शीट्स, या तो आप दो शीट कंसिडर करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, या फिर एक तरीका होता है आप इस तरह से गॉसियन सरफेस चूज़ करो कि पीछे वाला सरफेस ही इंक्लूड ना हो। दो तरीके हैं, पहला तरीका तो है कि आप दो सरफेसेस लेके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ऑटोमेटिकली आपका आंसर जो है वो जो हम रिक्वायर्ड आंसर है वही हम दे रहे होगा। और सेकंड तरीका होता है अगर आप इसको सिंगल सरफेस लेके गॉसियन सरफेस को इस तरह से चूज़ करो कि वो आपको आंसर प्रोवाइड करे। तो उसके लिए हम यहाँ पर हम गॉसियन सरफेस के लिए हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। एंड गॉसियन सरफेस हाउ वी आर गोइंग टू चूज़, हम यहाँ गॉसियन सरफेस अगेन चार्ज डेंसिटी कितनी है, क्या इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पॉसिबल है, नहीं, चार्ज डेंसिटी हो गई सिग्मा, ठीक है, चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा। एंड इफ यू चूज एनी एरिया ऑफ दिस, इफ यू चूज एनी एरिया ऑफ दिस, सपोज यू हैव चूजन एरिया एस, then charge q on that area will be sigma s. This is important, this is very important, ये काम आने वाला है, ठीक है। Let us choose the Gaussian surface. I am not going for the direction, हर बार मैं आपको स्टेप्स बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल निकालने हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन पता है, शीट है इनफाइनाइट, तो कैसे डायरेक्शन आने वाली, किसी भी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा परपेंडिकुलर टू द शीट आने वाला है। द फील्ड would be perpendicular to the sheet, perpendicular to the sheet। ये मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको अगेन, because in the previous lecture I have explained this। The electric field due to a sheet, either it is non-conducting or conducting, there is no parallel component if the sheet is infinite। Sheet is infinite, then there is no parallel component, and there is only component which is perpendicular। So I am not going for that component here। मैं वापस आपको वो एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। यहाँ चार्ज डी क्यू लेना, उसके दो कंपोनेंट लेने, साइन कैंसिल हो जाएंगे, कॉस अप एड अप हो जाएंगे, तो कॉस कंपोनेंट्स ये बताएंगे कि भाई किसी भी पोर्शन कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर ही है, तो आपसे परपेंडिकुलर ही कंसिडर करो। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दैट थिंग इन द प्रीवियस लेक्चर, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझें। ड्यू टू अ शीट, एक शीट के कारण, ड्यू टू अ शीट, किसी शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा ही उसके परपेंडिकुलर होगा। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी पैरेलल होंगी क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड आने वाला है। कौन सा फील्ड आने वाला है, यूनिफॉर्म फील्ड आने वाला है। तो लेट अस डिराइव द एक्सप्रेशन, डिराइव करने के लिए एक्सप्रेशन के लिए हम नंबर 1 स्टेप स्किप कर चुके हैं। क्यों, नंबर 1 स्टेप थी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया, आंसर है यस, हमें पहले ही पता है डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की, हमने प्रीवियस वाली शीट पे निकाला था। अच्छा, एग्जामिनेशन में आ जाता है तो आपको 2 स्टेप में करना है डायरेक्शन निकालने के लिए, पहले वाला मेथड, और नंबर 2 स्टेप पे ये करना है। हियर आई एम नॉट रिपीटिंग, मैं यहाँ रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बट इन एग्जामिनेशन यू हैव टू डू। सो नाउ वी चूज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस इस तरह से चूज करना है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाए, क्योंकि इसके
टू सरफेसेस होंगे, हम सिंगल सरफेस को ही कंसिडर करेंगे, तो हम गॉसियन सरफेस कुछ इस तरह से चूज कर रहे हैं। ये गॉसियन सरफेस है, यू कैन सी द गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है यहाँ पर। इट इज़ नॉट कटिंग द शीट, इस शीट को कट करके नहीं जा रहा है, ये शीट के अंदर जा रहा है, कट करके क्रॉस नहीं जा रहा है। मैं सपोज करें आप कुछ, जैसे सपोज करें मैं इस बॉक्स को बना दूँ, ये शीट का ये पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, देखें ये पोर्शन है, ये पोर्शन मैंने बना दिया यहाँ, इनफाइनाइट है ये, दिस पोर्शन आई ड्रॉन, मतलब शीट पकड़ के मैंने ऐसे कर दी। तो गॉसियन सरफेस कैसे है, गॉसियन सरफेस ऐसे है, वो यहाँ तक अंदर चला गया है, कहाँ चला गया, यहाँ तक अंदर चला गया, गॉसियन सरफेस यहाँ तक पहुँच गया। तो गॉसियन सरफेस इज हियर, कहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक। अब आपको कि सर मैं तो यहाँ से टू सरफेसेस लेके करूँ, यस यू कैन डू, बट द वेरिएशन इज देयर, फिर आपको सेकंड शीट का पोर्शन भी कंसिडर करना पड़ेगा, पीछे वाला पोर्शन भी कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि टू सरफेसेस हो गए। हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर, टू। हमें सिंगल सरफेस काउंटिंग करनी, मतलब हमें एक साइड ही आंसर निकालना है, दूसरी साइड वही आने वाला है। अगर आपने सिंगल साइड जो आंसर निकाला है वही आंसर आपका सेकंड साइड आने वाला है। तो हम गॉसियन सरफेस को ऐसा चूज कर रहे हैं वाइजली कि भाई हमारा जो काम है वो डायरेक्ट ही हो जाए, हमें दो बार डेरिवेशन नहीं करना पड़े। तो हमने इस गॉसियन सरफेस इस तरह से चूज किया कि वो उस मेटल शीट के अंदर तक गया हुआ है, क्रॉस करके नहीं निकला है। इट इज नॉट क्रॉसिंग, क्रॉस होता तो ऐसा होता, देखो क्रॉस होता तो यहाँ तक आ जाता है सरफेस, ये शीट इस गॉसियन सरफेस को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, लेकिन हमारा क्रॉस नहीं हुआ, ये उसके अंदर है। अब गॉसियन सरफेसेस के सरफेस कितने हो गए, S1, एक परपेंडिकुलर सरफेस हो गया ऐसा वाला, दैट इज S2, और एक सरफेस हो गया S3। देखें आप एरिया वेक्टर्स भी बना लेता हूं मैं, S2 ये परपेंडिकुलर, अब देखो बेटा ये S2 इधर भी हो सकता है, S2 इधर भी हो सकता है, S2 ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एक सिलेंडर के बाहर निकलो आप, सारी परपेंडिकुलर सरफेसेस होती है। रेडियल डायरेक्शन में सिलेंडर के सारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन होते हैं, रेडियल डायरेक्शन में सारे परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही होते हैं सिलेंडर के लिए। तो वी हैव थ्री सरफेसेस S1, S3 एंड S2 विच इज द सिलेंड्रिकल सरफेस, विच इज द सिलेंड्रिकल सरफेस। कौन सा सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेसेस। और हमने कितने सरफेस लिए हैं, 1 2 3। और एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शन बताएं, क्या इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे है, तो क्या S1 एरिया वेक्टर ऐसे है, ये S1 का एरिया वेक्टर इधर होगा, S1 कैप, क्या S2 S3 का एरिया इधर होगा, और S2 का एरिया वेक्टर ऐसा होगा, परपेंडिकुलर टू द सिलेंडर। S2 परपेंडिकुलर टू द सिलेंडर है। हमने फर्स्ट एरिया लिया है, एरिया के एरिया वेक्टर्स ले लिए हैं। नंबर 2 स्टेप लेना, यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑन दीज लोकेशंस। इन पोर्शंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। सबसे पहले बात करते हैं S1। क्या S1 इनसाइड ऑफ द शीट है, क्या S1 इनसाइड ऑफ द शीट है, क्या S1 इनसाइड ऑफ द शीट है। अगर ये इनसाइड ऑफ द शीट है तो यहाँ चार्ज कितना है, 0। अंदर तो चार्ज होता ही नहीं, अभी हमने पढ़ा मेटेलिक कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इसलिए है कि चार्ज नहीं है, चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जहाँ चार्ज नहीं है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गया, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, मतलब यहाँ तो वेक्टर की जरूरत ही नहीं, ई फील्ड ही 0 हो गया आपका ऑटोमेटिकली। क्या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यस इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर। On S3 the direction of electric field is perpendicular to the metallic sheet. Is S3 is perpendicular to the sheet? Yes, S3 is also perpendicular in electric field E3, which we are choosing here. E3 I take another color, so it will be easy for you to understand. Let us take green. So we have E3 here. ये E3 ऐसे outwards. And what is the direction of E2? E2 भी देखें आप, no parallel component, तो क्या E2 भी 0 है, parallel component नहीं होता, E2 भी 0, मतलब E2 ऊपर नीचे सारी डायरेक्शन में 0 है, 3 डायमेंशनल ऐसे सिलेंडर है, सिलेंडर ये देखें सिलेंडर, ये पूरा ये सिलेंडर, ये गॉसियन सरफेस ऐसा चूज किया, ये पॉइंट है अंदर, ये पॉइंट है बाहर, और ये पूरा सिलेंडर। अब सिलेंडर के अलोंग तो हो ही नहीं सकता, पैरेलल कंपोनेंट होता ही नहीं, तो E2 0 है, E1 0 है, और E1 इज ऑल्सो 0। एंड व्हाट इज नॉन जीरो, सिर्फ E3 नॉन जीरो है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ E3 एंड S3, E3 और S3 की डायरेक्शंस देखें आप, डायरेक्शंस ऑफ E3 एंड S3 आर द सेम, डायरेक्शंस ऑफ E3 एंड S3 आर द सेम। आंसर इज यस। क्या आंसर है, यस, दोनों की डायरेक्शन सेम है। लगाएं गॉस लॉ, लगाएं गॉस लॉ अप्लाई करें, गॉस लॉ अप्लाई करें तो गॉस लॉ के लिए अपन दिमाग लगाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम गॉसियन सरफेसेस के ऊपर लेने वाले चार्जेस को इंक्लूड करते हुए टोटल फील्ड्स लिखते हैं। तो हम देखें टोटल चार्ज जो है, चार्ज तो यहाँ है बस, चार्ज इज ओनली हियर, चार्ज इज ओनली हियर। कौन सा सरफेस, ये भी देखें चार्ज कहाँ है, यहाँ है, यहाँ ये चार्ज यहाँ देखें, ये डायग्राम देखें, वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि अभी तो आपने कहा सर ये तो अंदर है, यहाँ तो चार्ज है ही नहीं। चार्ज यहाँ नहीं, चार्ज यहाँ है, सरफेस पर, सरफेस लिया, ये शीट का सरफेस,
चार्ज इज ऑन द सरफेस, लेकिन क्या ये सरफेस इज गॉसियन सरफेस के अंदर है? यस। क्या ये सरफेस इज गॉसियन सरफेस के अंदर है? यस। अगेन आई शो दिस, इसको मैं वापस बना दूं। देखें आप, शीट का कौन सा वाला पोर्शन चूज करना है? दिस वन। मैंने जो शीट का पैरेलल कंपोनेंट वाला पोर्शन था वो चूज किया। देखें ये शीट आपकी कुछ ऐसी है, शीट रियलिटी में शीट ऐसी होगी, टू सर्फेसेस। थिन को मैंने कर दिया थिक, थिन को कर दिया मैंने थिक। नाउ टू सर्फेसेस, क्या इधर प्लस 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 चार्ज है? क्या इधर भी प्लस 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 चार्ज है? यस। हमें किसके कारण निकालना है? एक सिंगल सरफेस के कारण। हमें काउंट करना नहीं है। अगर हमें ये काउंट नहीं करना है तो हम गॉसियन सरफेस कैसा लिया हमने? देखें गॉसियन सरफेस, वी हैव चूजन सच काइंड ऑफ गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस लिया था हमने, ये दिस वाज द गॉसियन सरफेस। देखो ये अंदर, ये बाहर, ये परपेंडिकुलर, ये था आपका E2, इट वाज E3 and it was E1, it was S3 area, it was S2 area and it was S1 area। S1 एरिया तो ऐसा होगा, एरिया तो ऐसा होगा S1। अब ये वेक्टर बाहर है, एरिया बाहर नहीं। चार्ज कहाँ है? क्वेश्चन है वेयर इज चार्ज इन दिस एंटायर गॉसियन सरफेस? चार्ज यहाँ है। देखें चार्ज वाले रीजन को मैं हाईलाइट करता हूँ। दिस इज द चार्ज, ये चार्ज है, दिख रहा है चार्ज ये। इज इट विजिबल? चार्ज विजिबल है? कैन यू सी द चार्ज? जहाँ चार्ज कहाँ है? चार्ज कहाँ है? द चार्ज इज हियर, ये चार्ज है, सिर्फ यहाँ चार्ज है। एंड हाउ मच चार्ज इज देयर इन दिस रेड सर्कल? कितना चार्ज है इस रेड सर्कल में? चार्ज क्यू हो गया आपका। देखो S3 S1 इक्वल है, हम ले लेते हैं S3 इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू S, S3 इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू S। अरे सिलेंडर है, ऑपोजिट सरफेस सेम होते हैं, और क्या उसका कर्व सरफेस एरिया सेम होता है, तो सब जगह कर्व सरफेस, सॉरी कर्व सरफेस क्या, जो उसका सिलेंड्रिकल इनर रीजन है, क्या वो सब जगह सेम होगा? अरे यहाँ जहाँ एरिया है उतना एरिया यहीं होगा, उतना एरिया यहीं होगा, सो एरिया इज सेम थ्रू आउट द सर्फेस। तो उस कंडीशन में हम देखें Q जो आया वो आया सिग्मा S, Q इज सिग्मा S। नाउ लेट अस राइट इट इक्वल टू द फ्लक्स। क्या कहता है गॉस लॉ? गॉस लॉ कहता है भाई कि नाउ पुट द फ्लक्स इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पुट द फ्लक्स, फ्लक्स को किसके इक्वल रखना है आपको? टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रखना है। यू हैव टू कीप द फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज। अब फ्लक्स कहाँ है? 1 2 3, 3 फ्लक्स हैं। देखें नंबर 1 फ्लक्स E1 डॉट S1, नंबर 2 फ्लक्स E2 डॉट S2, क्लोज 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 क्लोज। ओके, क्लोज सरफेसेस नॉट ओपन सरफेसेस, ओपन सरफेसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एंड नंबर 3 E3 डॉट S3 इज इक्वल टू टोटल चार्ज सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इफ यू टेक सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर हम सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं तो देखें E1 तो 0 है, दिख रहा है, नो ई फील्ड। क्यों नहीं है? शीट के अंदर कोई चार्ज नहीं, अंदर कोई चार्ज नहीं, देयर इज नो चार्ज इनसाइड, नो चार्ज इनसाइड, सो नो फील्ड, नो फील्ड, तो ये तो 0 हो गई टर्म। प्लस E2S2, देखें E2S2 हमें पता देयर इज नो पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट नाम की चीज नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड की शीट के लिए। इफ शीट इज इनफाइनाइट, शीट इनफाइनाइट है तो, शीट अगर इनफाइनाइट नहीं हुई, छोटी हुई, तो पैरेलल कंपोनेंट होता है, पैरेलल कंपोनेंट इज 0, आंसर आया 0। प्लस E3S3, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें क्या डॉट प्रोडक्ट दोनों का सेमी डायरेक्शन में है, तो थीटा तो हो गया 0, तो E3S3 को हम लिख सकते हैं सिंपल E डॉट E3S3 को हम सीधा ही लिख सकते हैं, मतलब डॉट और वेक्टर हटा के हम सीधा ही लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S3? S। What is the value of S3? S. So we got E3S. Overall of this integration is E3S. So we got sigma S upon epsilon naught। क्या S ने S को मार दिया? देखें ये तो 0 हो गया, S ने S को मार दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E3 का कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस राइट ओनली मैग्नीट्यूड, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डबल ऑफ नॉन कंडक्टिंग शीट। ये डबल आया है नॉन कंडक्टिंग शीट का, और रीजन बड़ा सिंपल है। क्या मेटेलिक शीट एक होती है? नहीं, मेटेलिक शीट हैज 2 सरफेसेस। एक तरह से देखा जाए इसको, एक शॉर्ट ट्रिक ऐसे भी की जा सकती है। देखो बेटा, अगर मैं ये शीट लेता सिंगल, तो इसके कारण होता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस एक शीट और है,
इस शीट के कारण भी होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ओवरऑल आंसर आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या डायरेक्ट आंसर भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है? तो गाउशियन सरफेस हमने ऐसा वाइजली चूज किया है कि अगर हम इस डिराइवेशन को एक्सटेंड करते, मैं इस गाउशियन सरफेस को यहाँ ले लेता तो 1 2 3 4 5 6 मुझे इंटीग्रेशन करने पड़ते, 6 सरफेसेस मुझे काउंट करने पड़ते, लेकिन मैंने गाउशियन सरफेस ऐसा वाइजली लिया है कि मुझे 3 बार ही करना पड़ा है ये, और आंसर वही आया जो रिक्वायर्ड था। अदरवाइज आप दूसरा दिमाग ये लगा सकते हैं कि सरफेसेस हैं भाई, ये शीट है, ये शीट है, तो 2 सरफेसेस के कारण यहाँ आप आंसर निकाल सकते हैं, 2 सरफेसेस के कारण आप यहाँ आंसर निकाल सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और आंसर आ गया आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अदरवाइज आप डायरेक्ट ऐसा इंटीग्रेशन करें जो आपकी बुक में दे रखा है, अच्छा ट्रिक है, अच्छा मेथड है। सो वी हैव हियर ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन नॉट, एंड अगर मैं वेक्टर टर्म में लिखना चाहूँ ई वेक्टर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, एंड व्हाट इज एन कैप? परपेंडिकुलर वेक्टर, perpendicular unit vector from the sheet, sheet से perpendicular unit vector है। और is it double of the previous one field? yes, आप देखें मेटेलिक शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो डबल आया है। किसका डबल आया है? किसका डबल आया है? नॉन कंडक्टिंग शीट का। किसका डबल आया है? नॉन कंडक्टिंग शीट का। तो हमारे पास ग्राफ, वापस देखें, ग्राफ के लिए क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं कि ड्रॉ द ग्राफ। ग्राफ के लिए हम यहाँ करेंगे ई आर, ग्राफ आएगा ऐसा। कैसा ग्राफ आएगा? ऐसा। क्यों? इंडिपेंडेंट ऑफ आर, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सो दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज कंडक्टिंग शीट, एंड यू कैन सी देयर इज अ वेरिएशन, डेरिवेशन में वेरिएशन है। द डेरिवेशन इज प्रोवाइडिंग अस इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डबल ऑफ द नॉन कंडक्टिंग शीट। और वापस कंडक्टिंग शीट में मैं आपको क्लियर आउट कर दूं, कंडक्टिंग शीट में चार्जेस हमेशा यूनिफॉर्मली आउटर सरफेसेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर एक नॉन कंडक्टिंग शीट होती तो पीछे का काउंट ही नहीं होता। क्यों काउंट नहीं होता? अरे पीछे ने कोई किया ही नहीं ना, रोल ही नहीं है पीछे वाले का। तो लेकिन क्या यहाँ पर रोल है? यस, रोल दोनों का है। तो उसने हमने शॉर्ट ट्रिक के लिए हमने इसको आधे पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इन सच सिचुएशन वी गेट सच काइंड ऑफ आंसर, ऐसा आंसर हमें मिलेगा। तो आपको याद रखना है कंडक्टिंग शीट के कारण आंसर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, और नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण आंसर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। स्टिल इफ यू हैव कंफ्यूजन इस डिराइवेशन, लगे कि ये डिराइवेशन समझ में नहीं आई है, यू मस्ट आस्क मी, आप व्हाट्सएप पे भेज दें, एंड विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट थ्रू द वीडियो लेक्चर्स, और आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस थिंग इन द क्लास। मैं वापस क्लास में इस चीज़ को समझा दूंगा इफ़ यू हैव कन्फ्यूजन। ठीक है।